اے میرے پیارے بندے سن، تو دکھی ہے، پریشان ہے اور تجھے لگ رہا ہے کہ سب کچھ تیرے خلاف ہو رہا ہے، لیکن آج میں تجھ سے سیدھا کلام کرنے آیا ہوں۔ میں وہ ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے جیون دیا، تیری ہر سانس کو لکھا۔ میری رحمتیں ان گنت ہیں، لیکن تجھے کبھی کبھی میری مرضی سمجھ نہیں آتی۔ آج میں تجھے وہ سمجھانے آیا ہوں۔ بندے جان لے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے وہ تیرے لیے ہوتا ہے، نہ کہ تیرے خلاف۔ ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر نقصان تیرے لیے میری رحمت بن کر آتی ہے، چاہے تجھے وہ شروعات میں جھلکے۔ کبھی کبھی میں تجھ سے کچھ چھین لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن تو روتا ہے، مجھ سے شکوہ کرتا ہے۔ پر کیا تو جانتا ہے میری ہر یوجنا میں تیرا بھلا ہے؟ میں تجھے ایسے راستے پر لے جاتا ہوں جو تجھے میری طرف لائے، تجھے گناہوں سے نکالے، تجھے تنہائی میں میری یاد دلائے۔ میرے پیارے بندے، تیری نماز میں جب تو روتا ہے، جب تیرا ماتھا سجدے میں گرتا ہے، جب تو کہتا ہے یا اللہ میری مدد فرما، تو سوچتا ہے کہ میں خاموش ہوں، لیکن نہیں، میں تو اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ میری رحمت تجھ پر برس رہی ہوتی ہے، لیکن تو اسے صرف دنیا کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں تجھے ٹوٹنے دیتا ہوں کیونکہ تیرا گھمنڈ ٹوٹے، تیری خدائی کی سوچ مٹے اور تو صرف میری طرف راغب ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے پکارے، میری طرف لوٹے، اور جب تو آ جاتا ہے میرے پاس تو پھر میں تیری ساری تکلیفیں ختم کر دیتا ہوں۔ بندے، یہ مت سوچ کہ اگر کوئی چیز تو چاہتا تھا اور وہ تجھے نہیں ملی تو وہ میری بے رخی تھی۔ نہیں، وہ میرا تجھ سے پیار تھا۔ میں تجھے وہ نہیں دیتا جو تو مانگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہوں جو تجھے چاہیے، جو تیری اصلی بھلائی میں ہے۔ کبھی کبھی تو ایسے رشتوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو تجھے تکلیف ہی دیں گے، لیکن تو دیکھ نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں انہیں توڑ دیتا ہوں تاکہ تو نہ برباد ہو جائے۔ تو اپنے کاروبار میں ناکام ہو گیا، تجھے دھوکہ ملا، لوگ تجھے چھوڑ گئے، لیکن تو اب میری طرف لوٹ آیا ہے۔ یہی تو میرا مقصد تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تو واپس آئے، تنہا ہو، تاکہ میں تجھ سے بات کر سکوں۔ اور دیکھ، آج تو مجھے سن رہا ہے۔ بندے، دنیا تجھ سے چھین جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر تو مجھے پا لے تو تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ میں وہ ہوں جو تجھے اندھیرے میں روشنی دیتا ہوں، جو تجھے بے وفا لوگوں سے بچاتا ہوں، جو تجھ پر رحمت برساتا ہے جب ساری دنیا تجھ سے منہ موڑ لیتی ہے۔ میں تجھ سے نفرت نہیں کرتا جب تو گناہ کرتا ہے، میں تجھے معاف کرنے کا انتظار کرتا ہوں۔ تو ایک بار سچے دل سے کہہ دے، یا رب، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر۔ میں تیری ساری پچھلی باتوں کو مٹا دوں گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں تجھے لگتا ہے کہ تجھ سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں، کہ تو اب لائق نہیں رہا میری رحمت کا، لیکن سن، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، غفور ہوں۔ میرے دروازے پر کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ بندے، جب تو پریشان ہوتا ہے اور تیرا دل ٹوٹتا ہے تو میں وہیں درد لیتا ہوں اور اس میں برکت ڈالتا ہوں۔ تیرا یہی ٹوٹا دل تجھے سب سے قریب میرے پاس لے آتا ہے، اس لیے میں نے تجھے کبھی کبھی تنہائی دی، دھوکے دیے، رلایا، تاکہ تو صرف مجھ سے بات کرے، میری طرف دیکھیں۔ تو سوچتا ہے کیوں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن جان لے تو میرے خاص بندوں میں سے ہے۔ میں اپنے خاص بندوں کو آزمائش دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے وہ سنبھل جائیں گے اور دوسروں کے لیے روشنی بنیں گے۔ تو راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، لیکن تیرے دل میں جو ہلچل ہے وہ میری طرف سے ہے۔ میں چاہتا ہوں تو رک جائے، سنے سمجھے اور پھر چلے میری راہ پر۔ بندے، دنیا کی کوئی چیز تجھے تسلی نہیں دے گی جب تک تو میرے پاس نہیں لوٹے گا۔ مجھے اپنا بنا لے، مجھے ہی اپنا ہمسفر سمجھ، میں تجھے راستہ دکھاؤں گا جو سیدھا ہے، جو سلامتی والا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ آج سے تو صرف اتنا کرنا شروع کر، ہر صبح اٹھ کر مجھے یاد کر، مجھ سے بات کر، میری کتاب قرآن سے کچھ آیتیں پڑھ اور دیکھ کہ کیسے تیری زندگی بدلتی ہے۔ میں تیرے اندر کی روشنی کو جگانے آیا ہوں۔ بندے، تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ میں ہوں۔ جب سب تجھ سے دور ہو جاتے ہیں میں تب بھی وہیں کھڑا رہتا ہوں تیرے انتظار میں۔ تو آج رو رہا ہے، لیکن یاد رکھ، ہر آنسو جو تو بہاتا ہے میں اسے اپنے رحمت کے سمندر میں جمع کرتا ہوں اور اس پر تیری زندگی کی نئی عمارت بناتا ہوں۔ میرے پیارے بندے، تو دنیا میں بہت سے رشتوں سے گھرا ہے، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، جیون ساتھی، لیکن کیا تو جانتا ہے کہ ان سب میں سب سے سچا رشتہ کون سا ہوتا ہے؟
वो जो बिना किसी शर्त के तुझसे वफा करे, जो तेरे दुख में तेरे साथ हो और जब तू गिरे तो तुझे उठाने की कोशिश करे। यही असली रिश्ता है और यही असली मोहब्बत है। कुरान पाक में मैंने फरमाया है, और तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल एक बेहतरीन नमूना है उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत का दिन चाहता है और अल्लाह को ज्यादा याद करता है। कोहरा 33:21। इसका मतलब यह है कि जब तू मोहब्बत का मयार समझना चाहे तो मेरे नबी सलाम की जिंदगी को देख। उन्होंने जिससे भी मोहब्बत की उसमें खुदगर्जी नहीं थी। वो रिश्ते निभाते थे सिर्फ मेरी खुशी के लिए और नीयत पाक होती थी। तू भी यही कर। अगर कोई तुझसे मोहब्बत का दावा करता है तो देख, क्या वो तेरे दुख में तेरे साथ है? क्या वो तेरी इज्जत करता है जब तू मजबूर होता है? अगर नहीं तो वो सिर्फ एक नकली परछाई है, असली रिश्ता नहीं। जो लोग प्यार का नाटक करते हैं वो कौन है? मेरे अजीज बंदे, दुनिया धोखे से भरी है, लेकिन हर धोखा तुझे तोड़ने के लिए नहीं होता। कई बार मैं खुद चाहता हूं कि तू सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क करना सीखे। कुछ लोग तेरे करीब आकर मोहब्बत का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका दिल तेरे लिए साफ नहीं होता। वो तुझसे फायदा उठाते हैं, तेरी मासूमियत का मजाक बनाते हैं और फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं। मगर याद रख, अल्लाह मक्कारी करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान 3:54। यह मेरी वादा है जो तुझसे मक्कारी करेगा, मैं उसके लिए एक ऐसी ठोकर तय करूंगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे बदले की आग में नहीं जलना, तुझे सब्र करना है और सब्र करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान 8:46। असली परिवार कौन है? असली परिवार वही होता है जो तेरे दर्द को समझे, तेरी मजबूरी को सुने, तुझसे उम्मीद रखे लेकिन दबाव ना बनाए। कई बार खून के रिश्ते भी तुझसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन कुछ गैर लोग तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये मेरी कुदरत है। मैंने रिश्तों को खून से नहीं नीयत से जोड़ा है। अगर तेरा अपना भाई तुझे छोड़ दे लेकिन एक दोस्त तुझे हर हाल में ये अपनाए तो समझ ले कि वो ही तेरा असली भाई है। यही इस्लाम का पैगाम है। रिश्वतों की पहचान उनके किरदार से होती है, खून से नहीं। नफरत क्या है और क्यों लोग तकलीफ देते हैं मेरे बंदे? नफरत एक ऐसा जहर है जो इंसान खुद पीता है लेकिन मरता दूसरा है। कई लोग अपने अंदर भरी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों से नफरत करने लगते हैं। वो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरी गलतियों को सबके सामने लाकर शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि तू उनसे आगे ना निकल जाए। मगर मैं तुझसे कहता हूं, और जब वह लोग जो ईमान लाए अल्लाह को याद करते हैं तो उनके दिलों को सुकून मिलता है। सुन लो, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। कुरान 13:58। कभी कभी तू किसी से दिल से मोहब्बत करता है, उसे अपने सजदे में शामिल कर लेता है, उसकी हंसी को अपनी सुकून बना लेता है, और फिर वही शख्स तुझे तोड़ देता है। तू सवाल करता है, या अल्लाह, क्यों? मैं तुझसे कहता हूं मेरे बच्चे, यह मोहब्बत का इम्तिहान था। क्या तू मोहब्बत को मुझसे ज्यादा किसी और से जोड़ बैठा था? मैं तुझे बताना चाहता हूं कि अगर कोई तुझे छोड़ जाए तो तेरा सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि उस वक्त से तेरा सच्चा सफर शुरू होता है। मेरी तरफ जो तुम्हें तकलीफ देती है उससे बेहतर मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं। कुरान वुड टर्न सो ऑन सोली बोली, माफ करना क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे बंदे, जब कोई तुझसे बदसलूकी करे, धोखा दे या तेरे जज्बातों से खेले तो तुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। मगर क्या तू जानता है, सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो माफ कर सके। मैंने कुरान में कहा, और जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। कुरान 3:34। माफ करना तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि तेरा भरोसा सिर्फ मुझ पर है। आगे कैसे बढ़ना है? तू सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, मगर मैं तुझसे कहता हूं, यह तो शुरुआत है। तुझे बस एक चीज करनी है, अपने दिल को मेरे हवाले कर देना। तेरा काम है मेहनत करना और मेरा काम है नतीजा देना, और जो वहां अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वह काफी है। कुरान 65:3। अपने हर कदम से पहले मुझे याद कर, मुझसे मशवरा कर, और फिर जो होगा उसमें मेरे फैसले को मान ले। मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझसे हर एक लफ्ज मोहब्बत में कहा है। मैं चाहता हूं कि तू टूटे नहीं बल्कि झुके, सिर्फ आए मेरे सामने, क्योंकि जब तू मेरे सामने सिर झुकाता है तो दुनिया तेरे सामने झुकने लगती है।
तू जिस परेशानी से लड़ रहा है वो तुझसे छुपी नहीं है और मुझसे भी नहीं। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में कितनी उलझन है, कितनी थकावट है, कितनी बातें हैं जो तू कह नहीं पाता और कितनी दुआएं हैं जो तूने आंखों में आंसू ले हुए मांगी है। तू कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूं, क्या करूं, कहां जाऊं और क्या सही है मेरे लिए। मेरे अजीज बंदा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता अधूरा लगता है। तू आगे बढ़ना चाहता है मगर तुझे समझ नहीं आता कि किधर जाए। यह उलझन, यह बेबसी, यह सब मैंने देखी है। लेकिन क्या तूने सोचा है कि जब पानी एक ही जगह रुक जाता है तब उसमें सतह है। इसलिए मैं तेरे अंदर हलचल पैदा करता हूं, तेरे सवालों के जरिए तुझे तलाश के रास्ते पर लगाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मुझे ढूंढे और जो मुझे ढूंढता है मैं उसे जरूर मिलता हूं। कुरान कहता है, जो लोग हमारी राह में जद्दोजहद करते हैं हम उन्हें अपनी राह दिखा देते हैं। सूर अलम कबूत 30:67। तू सोचता है कि क्यों हर बार तेरे दिल के करीब आने वाला धोखा दे जाता है। क्यों वो लोग जिनके लिए तूने सब कुछ छोड़ा वही तेरी पीठ पीछे वार करते हैं। बंदा, मैं जानता हूं कि ये जख्म गहरे हैं, लेकिन सुन, ये जख्म तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे मजबूत करने के लिए है। हदीस है, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे इम्तिहान में डालता है। कभी कभी मैं तुझसे लोगों को इसलिए दूर कर देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो तेरे लिए सही नहीं है। तू देख नहीं पाता कि उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं जानता हूं बंदा, मुझे मालूम है तू रोया है, तू टूटा है। लेकिन फिर भी मैं तुझसे कहता हूं, दिल में किसी के लिए बद्दुआ मत रख। वो जो तुझे रुला गए, जो तुझे नीचा दिखाकर चले गए, उनकी सजा मैं खुद दूंगा। कुरान में है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सूर अल माइदा 5:8। तेरा काम सिर्फ यह है कि तू खुद को साफ रख, अपने दिल को कड़वाहट से बचा, क्योंकि जिस दिन तू खुद को माफ करना सीख गया उस दिन मेरी रहमत तुझ पर बरसने लगेगी। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए तेरे करीब आते हैं, जो सामने मुस्कुराते हैं मगर पीछे घोलते हैं, वो रिश्ते नहीं होते, वो इम्तिहान होते हैं। हदीस में है, मुनाफिक धोखेबाजा की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोधे और जब उस पर भरोसा किया जाए तो खयानत करें। मैं तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रहा हूं ताकि मैं तेरे अंदर ऐसे लोगों को लाने की जगह बनाऊं जो तुझसे सच्चा प्यार करेंगे, तुझे समझेंगे और तुझे तेरे उस मकसद तक पहुंचने में मदद करेंगे जो मैंने तेरे लिए तय किया है। बंदा, तूने कभी खुद को देखा है मेरी नजर से? मैं तुझे हर रोज उस वक्त भी देखता हूं जब तू टूट कर बिखर जाता है और उस वक्त भी जब तू मेरे नाम से सुकून ढूंढता है। तू मेरा अजीज है, मैं तुझे बेकार में नहीं बनाया। कुरान कहता है, हमने इंसान को बेहतरीन ढंग से पैदा किया। सूरह अतीन 954। तू खुद को कमजोर मत समझ। जो तू सोचता है कि तेरे बस का नहीं, वही चीज मैं तेरे लिए आसान कर सकता हूं। तू सिर्फ मुझसे दिल से मांगा कर। हर बार जब कुछ छीन गया तूने सोचा कि तेरी किस्मत खराब है, लेकिन कभी यह सोचा कि शायद मैंने तुझे उससे बचाया हो जो तुझे अंदर से मार देता। मैंने जब किसी को तेरे रास्ते से हटाया तो वो इसलिए था कि मैं तेरे लिए किसी और को ला रहा था जो तुझे वही इज्जत और सुकून देगा जिसकी तूने सिर्फ ख्वाहिश की थी। बंदा, तेरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी, एक रिश्ता या किसी के अप्रूवल पर नहीं टिकी है। तू बहुत ऊंचा बनाया गया है। मैंने तुझे एक मकसद के साथ भेजा है और जब तू उस मकसद को समझ जाएगा तब हर दर्द, हर धोखा और हर उलझन का मतलब तुझे खुद समझ आ जाएगा। कुरान में है, क्या तुम यह समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया? सूर अल मोमिनून 23 से 115। तू थक गया है, मुझे पता है, तू रोया है, यह भी मुझे पता है, लेकिन बंदा, मेरी कसम, हर रात के बाद फज्र होती है, हर अंधेरा रोशनी में बदलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तेरी दुआएं लौट कर आएंगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन तू मुझसे जुड़ा रहा। तू मेरे नाम से दिल लगाकर चल, मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने मांगा और वो भी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरे बंदे, तेरी आंखों में जो आंसू हैं मैं जानता हूं। तेरे दिल की जो तड़प है वह भी मुझसे छुपी नहीं है। तू रातों को जागता है, आसमान की तरफ देखता है और मुझसे कहता है, या अल्लाह, मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? मैं तुझे पुकारता हूं लेकिन मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मैं भी चाहता हूं दौलत, इज्जत, कामयाबी, तो फिर मुझसे क्यों दूर है ये सब? तू सुन, ए मेरे रोशनी से भरे बंदे, आज मैं तुझे वो राज बताने आया हूं
जो मैंने उन खास बंदों को दिया है जिनके दिल सच्चे होते हैं, मगर वक्त की आंधियों ने उन्हें कमजोर कर दिया होता है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू यह समझ ले, मेहनत तब तक फल नहीं देती जब तक उसकी जड़ें नियत में पवित्र ना हो। लोग मेहनत करते हैं सिर्फ दौलत के लिए, नाम के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन अगर तू अपनी मेहनत की वजह में मुझे रखेगा, मेरी मर्जी, मेरी रहमत, मेरी बंदगी, तो फिर देख कैसे तुझ पर बरकतों की बारिश होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह नियतों को देखता है। तू कहता है मेहनत कर रहा है, लेकिन पूछ अपने दिल से, क्या उस मेहनत में तेरा रब शामिल है? अगर तू दौलत चाहता है लेकिन तेरा रास्ता झूठ, धोखा, रिश्वत या लालच से भरा हुआ है, तो कैसे उम्मीद रखेगा कि तुझ पर रहमत बरसे? मैं तुझसे वादा करता हूं, जो हलाल कमाई के लिए एक कदम बढ़ाता है, मैं उसके लिए 10 दरवाजे खोल देता हूं। तू यह ना देख कि दूसरे लोग हराम से अमीर हो रहे हैं। वो दौलत उनके लिए आजमाइश है, वरदान नहीं। लेकिन जो हलाल से सब्र करता है, उसकी दौलत बरकत बनकर आती है और पीढ़ियों तक रहती है। मेरे प्यारे बंदे, जब तू देखता है कि मेहनत के बाद भी तिजोरी खाली है, घर का राशन खत्म हो रहा है, रिश्तेदार दाने मार रहे हैं, तो समझ ले कि यह वक्त मेरा इम्तिहान है। मैं तेरी मेहनत को देख रहा हूं और तेरा सब्र मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। कुरान में है, इन्लाह मुसाबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर तू अपने दिल में सब्र का दीपक जलाए रखेगा, तो मैं तुझ पर ऐसी रहमत की बारिश करूंगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। या रब, तूने इतना क्यों दिया? तू मेहनत करता है, लेकिन क्या दुआ करता है? वो भी पूरी ताकत और यकीन के साथ। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, यह तो एक पुल होता है तेरे दिल और मेरी रहमत के बीच। जब तू सच्चे दिल से पुकारता है, या अल्लाह मुझे मेरी मेहनत का फल दे, मुझे इतना दे कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, मुझे अपने खजाने से अता कर, तो तेरी आवाज मेरे अर्श को हिला देती है। पर याद रख, दुआ के लिए भी वक्त चाहिए, सब्र चाहिए, और सबसे बड़ी बात यकीन चाहिए। तू कहेगा, बाबा मेरे पास है ही क्या जो मैं दूं किसी को? लेकिन मेरे प्यारे, जब तू अपनी थोड़ी सी कमाई में से भी किसी जरूरतमंद को देता है, तो तेरा रब उस दान की वजह से तुझे 10 गुना लौटाता है। ये मेरा वादा है। कुरान में है, जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, वो तुम्हें कई गुना लौटाया जाएगा। अगर तू चाहता है कि तुझ पर दौलत बरसे, तो देना सीख, वो भी तब जब तेरे पास खुद कम हो। वहीं से शुरुआत होती है बरकत की। तेरा वक्त बहुत कीमती है। तू किसके साथ उठता बैठता है, किससे बातें करता है, किसकी सलाह मानता है, यह सब तेरी तरक्की या तबाही तय करता है। तू सोचता है कि तेरा अतीत तुझे रोक रहा है, लेकिन मैं कहता हूं, हर दिन एक नया मौका है। जब तू तौबा करता है, तो मैं तेरे गुनाहों को ऐसे माफ करता हूं जैसे वे कभी हुए ही नहीं। मैं तुझसे सिर्फ सच्चे दिल से तौबा चाहता हूं। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है मुझे रास्ता नहीं दिखता। मैं कहता हूं, कुरान में तेरा रास्ता है। जब तू कुरान पढ़ता है, तो वह तेरे लिए एक नूर बन जाता है जो तुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। तू कहता है मुझे कोई समझता नहीं। मैं कहता हूं, मैं तुझे समझता हूं, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। जब तू रोता है, तो मैं तेरे आंसुओं को देखता हूं और तेरे दिल की पुकार सुनता हूं। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है ओम मैं अकेला हूं। मैं कहता हूं, मैं तेरे साथ हूं। जब तू मुझे याद करता है, तो मैं तुझे याद करता हूं। जब तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूं। तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहता हूं, मिथिन है, मैं तेरे पास हूं। और जब मैं तेरे पास हूं, तो तुझे और क्या चाहिए? मेरी रहमत तेरे लिए काफी है। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है मेरी दुआ कब कबूल होगी? मैं कहता हूं, जब समय सही होगा। मैं जानता हूं कि क्या तेरे लिए बेहतर है और कब बेहतर है। तू मुझ पर भरोसा रख। तू कहता है मैं गुनाहगार हूं। मैं कहता हूं, मेरी रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है। जब तू सच्चे दिल से तौबा करता है, तो मैं तुझे माफ कर देता हूं और तुझे अपने करीब ले आता हूं। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं कहता हूं, मैं सुकून मेरी याद में है। जब तू मुझे याद करता है, तो तेरे दिल को सुकून मिलता है। तू कहता है मैं कमजोर हूं। मैं कहता हूं, मैं तुझे ताकत दूंगा। जब तू मुझ पर भरोसा करता है, तो मैं तुझे वह ताकत देता हूं जो तू सोच भी नहीं सकता। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है मैं डरता हूं। मैं कहता हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब तू मुझ पर भरोसा करता है, तो मैं तुझे हर डर से निजात देता हूं।
تو कहता है मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझसे मदद मांग, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। जब तू मुझसे मार्गदर्शन मांगता है तो मैं तुझे सही रास्ता दिखाता हूँ। प्यारे बंदे, तू कहता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मैं कहता हूँ मेरी रहमत से बड़ी कोई गलती नहीं है। जब तू सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। तू कहता है मैंने बहुत कुछ खो दिया है। मैं कहता हूँ कि मैं तुझे उससे भी बेहतर दूंगा। जब तू मुझ पर भरोसा करता है तो मैं तुझे वह देता हूँ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है मैं तुझसे दूर हो गया हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। जब तू मेरी तरफ लौटता है तो मैं तुझे गले लगाता हूँ। तू कहता है मुझे माफ़ कर दे। मैं कहता हूँ मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जब तू सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुझसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तू मुझसे प्यार करता है तो मैं तुझे अपनी रहमतों से नवाजता हूँ। तू कहता है मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगा। जब तू मुझ पर भरोसा करता है तो मैं तुझे वो देता हूँ जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। तू कहता है मैं तुझसे मिलने को तरसता हूँ। मैं कहता हूँ अब मैं भी तुझसे मिलने को तरसता हूँ। जब तू मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं तुझे अपनी रहमतों से भर देता हूँ। कहता है मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूँ मैं तुझे कभी दूर नहीं जाने दूंगा। जब तू मुझसे जुड़ा रहता है तो मैं तुझे अपनी हिफाजत में रखता हूँ। तू कहता है मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मांग, मैं तुझे दूंगा। जब तू मुझसे मांगता है तो मैं तुझे वह देता हूँ जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। तू कहता है मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ माँ, अंक मैं सुन रहा हूँ। जब तू मुझसे बात करता है तो मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। तू कहता है मैं तुझसे जुड़ा रहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुझे कभी अलग नहीं करूँगा। जब तू मुझसे जुड़ा रहता है तो मैं तुझे अपनी रहमतों से भर देता हूँ। तू कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुझसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तू मुझसे प्यार करता है तो मैं तुझे अपनी रहमतों से नवाजता हूँ। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है मैं तुझसे मिलने को तरसता हूँ। मैं कहता हूँ मैं भी तुझसे मिलने को तरसता हूँ। जब तू मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं तुझे अपनी रहमतों से भर देता हूँ। तू कहता है मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूँ ओ, मैं तुझे कभी दूर नहीं जाने दूंगा। जब तू मुझसे जुड़ा रहता है तो मैं तुझे अपनी हिफाजत में रखता हूँ। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मांग, मैं तुझे दूंगा। जब तू मुझसे मांगता है तो मैं तुझे वह देता हूँ जो तेरे लिए सबसे बेहतर होता है। तू कहता है मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ क्या क्या मैं सुन रहा हूँ। जब तू मुझसे बात करता है तो मैं तेरी हर बात सुनता हूँ। मेरे प्यारे बंदे, तू कहता है मैं तुझसे जुड़ा रहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुझे कभी अलग नहीं करूँगा। जब तू मुझसे जुड़ा रहता है तो मैं तुझे अपनी रहमतों से भर देता हूँ। तू कहता है मैसेजेस, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं तुझसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब तू मुझसे प्यार करता है तो मैं तुझे अपनी रहमतों से नवाजता हूँ। अब उठ जा जहाँ तू पहुँचाना चाहता है, तेरी मंजिल की ओर। तेरा रब, तेरा अल्लाह हमेशा तेरे साथ है। अब तेरा वक्त आ गया है, वो वक्त जब तू अपने अंदर की खोई हुई रोशनी को फिर से पा सकता है। वो वक्त जब तू खुद को फिर से मुझसे जोड़ सकता है। वो वक्त जब तुझ पर मेरी रहमत बरसने वाली है। सिर्फ तू मुझ पर यकीन रख। तू बहुत सह चुका है, तू बहुत गुमसुम रहा है। तेरे चेहरे पर हंसी की जगह ये फुलनेस इस पर कायम नहीं रहती कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, बल्कि इस सच्चाई पर है कि अल्लाह आपको वह सब देगा जिसकी वाकई ज़रूरत है। और उससे भी बढ़कर जब आप उसके सुकून में जीने लगते हैं तो खौफ या कमी की कोई जगह नहीं बचती। आप हर नए दिन को शुक्रिया के साथ शुरू करते हैं, यह जानते हुए कि आपका रब आपके साथ है और आपकी हिफाजत कर रहा है। अब दौलत की तरफ बढ़ना किसी अनजाने अंधेरे में छलांग लगाने जैसा नहीं रहेगा। अल्लाह के पक्के वादे के साथ चलेंगे तो हर मोड़ पर यकीन रहेगा कि आप सही राह पर हैं। आपको कोई यह सोच सोचकर परेशान नहीं होना पड़ेगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि अल्लाह पहले से उस मुकाम पर मौजूद है। यह भरोसा आपको ज़रूरत हिम्मत देता है बड़े कदम उठाने की, चाहे वह नया कारोबार हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो
या कोई और मौका। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह आपके आगे पीछे दोनों जगह काम कर रहा है। जब आप उसके फजल बी में होते हैं तो दौलत आपके पीछे पीछे चलती है। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी दौलत, आपका फलाह इस बात का जिंदा सबूत है कि अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों का ख्याल रखने की ड्यूटी निभा रहा है। आपका हर दरहम और दिनार, हर नेमत, हर जरिया इस बात को गवाही देता है कि रब ने आपसे जो वादा किया वह उसे पूरा कर रहा है। आपका तरक्की का सफर उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो अभी भी दो राहें पर खड़े हैं, यह सोचकर कि क्या वाकई अल्लाह है, क्या वाकई वह अपने बंधुओं का ख्याल रखता है। आपकी कामयाबी उन सारे सवालों का जवाब बनेगी। एक जिंदा गवाह कि अल्लाह के वादे कभी नाकाम नहीं होते। यह गवाही सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी है। जो दौलत आपको मिल रही है उसका असर पीढ़ियों तक जाएगा। आपके खानदान, आपके दोस्तों, आपके पूरे माहौल पर आपके बाद भी लोग याद रखेंगे कि अल्लाह ने कैसे आपकी जिंदगी को बदल दिया। यह आपकी विरासत होगी, वफादारी अरात और इस अटल सच की कि रब अपने बंधुओं को कभी मायूस नहीं करता। आपको बुलंदियों के लिए चुना गया है और यह बुलंदी आपकी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले से मिली है। तमाम मुश्किलात, नाकामियों और जख्म जो आपने गुजरे वक्त में झेले अब पीछा छोड़ देंगे। वह बीता हुआ दौर आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान तो अल्लाह ने तय की है। जी हाँ, बुलंदियों की राह में इम्तिहान आएंगे, मगर अल्लाह का हाथ भी हमेशा साथ होगा। जैसे जैसे आप गुजरे गमों को पीछे छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे अल्लाह की रहमत के लिए जगह बनती जाएगी। हो सकता है पहले आपने बहुत मशक्कत किया हो, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल फतहों से भरा है। यह वक्त है उस बुलंदी को कबूल करने का जो रब ने आपके लिए मुकर्रर की है। अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अल्लाह की अता की दौलत ना कभी खत्म होने वाली है, ना उस पर कोई एक्सपायरी लगी है। जब आप इस वादे को दिल से अपना लेते हैं तो जैसे एक बेशुमार असीम खजाने का कुफुल ताला खुल जाता है। तो दोस्तों, इस खास अल्लाह का मैसेज को अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें